ইণ্ডিগো এয়াৰলাইন ঝমেলা থকাটো এতিয়া ঠিক হ'বলৈ নাপাৰিছে। ফ্ৰাইডে দিন দেবি 1000 ওপৰ ফ্লাইটছ কেঞ্চেল হৈ কিনা থাকিছে আৰু এয়াৰপৰ্ট খান পেচেঞ্জাৰ্ছ খান বেছি দেৰি ৰখি কিনা থকা দেখি পাইছে। কোনোবা মানুহটো খুচি নাপাই কিনা হালা কৰি দেখি পাইছে। ফ্ৰাইডে দি ইণ্ডিগো লাষ্ট CEO পিটাৰ এলবাৰ্ছ পৰা ষ্টেটমেণ্ট এটা মাফ মাগিছে। এয়াৰলাইন বা কৈছে তাহান কাষ্টমাৰ খান লগতে কথা কৰি আছে, ফাঁচি কিনা থকা খানগে যাবলৈ কোচিছ কৰি আছে আৰু ক্ৰু খান লগতে মিলিবলৈ কাৰণে কেঞ্চেল খান কৰি দি আছে। তাই কিন্তু কৈছে ফ্লাইট সাৰ্ভিসেছ খান ডিসেম্বৰ 10 আৰু 15 মাজতে ঠিক হৈ যাবলৈ আশা আছে। চেণ্টাৰ পৰা এটা হাই লেভেল প্ৰব অৰ্ডাৰ কৰিছে কি নিমিত্তে এইটো খান হৈ আছে। জানি পাই হিচাপতে নতুন ৰেগুলেশ্যন বা শুৰু হৈছে। গোটেই পাইলট খান 12 আৱাৰ ৰেষ্ট থকাটো 48 আৱাৰ কৰি দিছে আৰু এক সপ্তাহতে 6 বাৰ ৰাতি লেণ্ডিং কৰি থকাটো খালি 2 বাৰ কৰি দিছে। এইটো কাৰণে চেণ্টাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি দিছে এইটো DGCA ফ্লাইট ডিউটি লিমিটেশ্যন নিয়মটো হটাই দিবলৈ। And today, we have observed that the new FDTL regulations, they started in November, which was 1 month before itself. And through the last 1 month also, we have been observing, and things were pretty much not to the extent of this, but there was no issue regarding the new FDTL norms that was observed. And the second thing is that the other airlines, Air India or the Akasa or SpiceJet, they have all adjusted and they have done the necessary this thing. But here, what was unanticipated suddenly, which has boomed into this because of the mismanagement that has happened at the Indigo regarding their crew, that is why this incident has happened, which is why, to ensure normalcy is there at the earliest, we have given certain abeyance to the FDTL norms to Indigo. But on the other side, because we have observed this only in Indigo, so we have established a committee which will inquire into all this so that they can establish where things went wrong and who did it wrong. And we are going to take necessary action on that also. This thing shouldn't be left unattended. We are taking strict action on this so that whoever was responsible into this needs to pay for it. Also, sir, ফ্লাইটছ খান বেছি কেঞ্চেল হোৱাৰ পৰা টিকেট খান বেছি দাম হোৱা কৈ আছে। ৰিপৰ্ট পাই হিচাপতে ফ্ৰাইডে মুম্বাইৰ পৰা দিল্লী ফ্লাইটটো এটা পেচেঞ্জাৰ কাৰণে ₹51,860 উঠিছে। পেচেঞ্জাৰ খান বেছি গুচা হোৱা দেখি পাই আছে। जाएगा हम लोग सिलीगुड़ी नहीं तो गुवाहाटी तक देखो। ठीक है जी, कब से आपकी फ्लाइट वगैरह कैंसिल? मेरी 3rd को फ्लाइट कैंसिल हुई है, 4th को फ्लाइट कैंसिल हुई है, 5th को कैंसिल हुई है। आपका काउंटर पे उनका क्या जवाब है? मेरी फ्लाइट आज 2:30 बजे की है। मैं 3 दिन से बैग्स लेके आ रहा हूँ, तो आज मैं जस्ट इनसे पूछने आया बैग लेके आऊँ नहीं आऊँ, फ्लाइट जा रही है नहीं जा रही है। तो वो बोल रहे हैं फ्लाइट आज जाएगी। तो मैं होटल अपने बैग्स लेने जा रहा हूँ 2:30 बजे, तो बोल रहे हैं अभी तक ये स्टेटस है, बात का पता नहीं जी। जो होटल से रहेगा खर्चा वगैरह नहीं, इन्होंने कुछ नहीं दिया जी। जो आपका रिफंड हुआ है कोई? रिफंड अभी तक नहीं आया जी, अभी तक रिफंड भी नहीं आया। होटल का खर्चा इन्होंने कुछ नहीं दिया। तो क्या उम्मीद लगी है? देखो जी, हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारी फ्लाइट उड़ जाए, और क्या उम्मीद करनी है सर। मेरी गोवा की फ्लाइट थी सर। थैंक यू। आपका नाम जानना चाहूँगा। आज 11 बजे से फ्लाइट इंडिगो की ऑपरेट हो रही है जी, मेरा नाम कशिश है। मैं अपनी मामी को छोड़ने आया था जो कि जम्मू से दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं। हम कल से स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें कोई स्टेटस नहीं पता चल रहा है। मेरी मामी परसों भी दिल्ली से जम्मू जब आई थी तो 12 घंटे ये फंस गई थी। 12 घंटे दिल्ली एयरपोर्ट पे बिल्कुल स्टक थी है। सच ए बिग एयरलाइन, इतना अनप्रोफेशनल कंडक्ट इनका है। ये लोग कोई सुनवाई नहीं है,
कोई तरीका नहीं है इनका। नाम की बड़ी एयरलाइन है, बस बुक्स में प्रॉफिट करना आता है इन लोगों को। 11 में से 9 फ्लाइट ऑपरेट हो रही है, कैसे देख रहे हैं? 11 में से 9 फ्लाइट ऑपरेट हो रही है, ये अच्छी खबर है, लेकिन हमें नहीं पता हम कितने इसमें लकी होंगे, क्योंकि हम तो यही देख पा रहे हैं कि सारी आम जनता परेशान हो रही है। ये सिर्फ एक तंग करने का तरीका है। बाकी एयरलाइंस देखो, उनके रेट 6-6 गुना बढ़ गए हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों। ट्रेन बिल्कुल फुल चल रही है, इनके घर में छोटा बच्चा है, अब ये क्या करेंगे बताओ। इतना अनप्रोफेशनल है, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो से बागडोरा सिलीगुड़ी से आ रहा हूँ और मैं इधर शादी में आया था और 3 दिन जो कितने तारीख को 4 तारीख को शादी हो गई थी और शादी होने के बाद कल हमारी फ्लाइट थी इंडिगो से 11:20 में बाहर दिल्ली होके बागडोरा के लिए, और कल भी कैंसिल करने के बाद हम लोग फिर रात में होटल में ठहरे। होटल ठहरने के बाद में आज सवेरे हम लोग को अपडेट किया था कि फ्लाइट जाएगी, शेड्यूल में जाएगी, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट में पता लगा कि फ्लाइट कैंसिल है। ये पहले ही बता देते या तो कल अपडेट कर देते तो हमको तकलीफ नहीं होता। और हमारी एयरपोर्ट आज होटल का भाड़ा भी लगा और हम लोग अभी सुबह आए एयरपोर्ट से, होटल से एयरपोर्ट, तब जाके यहाँ भी हम लोग का भाड़ा लगा। अब रहने के लिए भी हम लोग को ऐसा कोई सुविधा दे ही नहीं रहे हैं। अब ये अपडेट भी करने को मना कर रहे हैं कि कल की फ्लाइट होगी या सोमवार को होगी, ये अपडेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो अब इसमें समस्या हम लोगों का बनी हुई है। भोजराज जैन, सिलीगुड़ी। तो मोई पॉलिटिक्स दे भी इतला मामला पुंछ से और ऑपोजिशन का सेंटर के दोष देस लोकसभा ला लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी बा कुसे बीजेपी सरकार बा मोनोपोली मॉडल चुला निम्दे होयस और इंडिया ला सेक्टर सबते फेयर होले लगे कुसे बीजेपी एमपी जगदम्बिका पालब्रा क्वा हिसाब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिशिबी फांसी नास। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. जिस तरीके से इंडिगो का जो हुआ है इसका हम निषेध करते हैं। इस पे भारत सरकार ने पार्लियामेंट में ऑफिशियल स्टेटमेंट करना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, डॉक्टर्स है, किसी के यहाँ कोई फैमिली में गुजर गया है, किसी की शादी हुई, आप देख रहे हैं 2 दिन से क्या हाल है। और जिस तरह से भारत सरकार से कोई भी स्टेटमेंट आज तक नहीं आया, पार्लियामेंट 2 दिन से चल रही है, एक स्टेटमेंट भारत सरकार से नहीं आया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सोमवार को जो होगा डिस्कशन, उसके पहले भारत सरकार ने इस देश को और पार्लियामेंट को जवाब देना चाहिए कि इंडिगो का क्या हुआ। और ऐसा है कि अगर 4-5 एयरलाइंस होती तो इंडिगो का ये जो के कारण जो हाल हुआ है सबका, ये नहीं होता। सो कॉम्पिटिशन इज गुड एंड कस्टमर इज किंग। एक ऐसी एयरलाइन सबको जिस तरह से सबको बांध के रखा, ये किसी इकोनॉमी और देश के लिए और या बिजनेस के लिए ये अच्छा नहीं है। क्या आप जांच की मांग करेंगे सरकार से? बिल्कुल जांच तो होनी चाहिए, हमने मांग की है, पार्लियामेंट में भी कल इस पे हमने मांग की, लेकिन भारत सरकार से स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर कहा कि देश का संविधान जो है खतरे में, पूरे देश की जनता वो तो है ना, आपने देखा होगा ना, आप ही के चैनल ने दिखाया, हर गली में लड़ाई हो रही थी 2 दिन पहले महाराष्ट्र में। फॉर्म जो इच्छा रही है वो सत्ताधारी, और जिस तरह से कैश पकड़ी गई, कितना कैश महाराष्ट्र में, इधर नोटबंदी हो रही है तो ये कैश आया कहाँ से? ओके, थैंक यू मैम। पैसेंजर्स फांसीना थका खानिमदे नॉर्दर्न रेलवे ब्रा राजधानी एक्सप्रेस कुंद जम्मू ब्रा दिल्ली जाए इतुदे एक्स्ट्रा कोच लगाई दिसे और इतु फ्राइडे ब्रा शुरू करिना 7 दिन चुली बोलेस सीपीआर नॉर्दर्न रेलवे हिमांशु शेखर उपाध्याय ब्रा कुसे ताखान डेडिकेटेड टीम रखिसे मनोकान स्टेशन बिसारिया खान के ट्रैक करो बोले। एक टीम होती है डेडिकेटेड, वो इसको वॉच करती है कि किस स्टेशन के लिए, किस एरिया के लिए ज्यादा सर्च हो रही है, ज्यादा क्लिक हो रही है, ज्यादा डिमांड हो रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम स्पेशल ट्रेन्स या कोच अटैचमेंट करते हैं, एक्स्ट्रा कोचेस का अटैचमेंट करते हैं। तो अभी जो हाल में बढ़ी हुई डिमांड है उसको मीट करने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा
बहुत सारे नए उपाय किए गए हैं, जैसे कोच का अटैचमेंट। कोच अटैचमेंट में बताना चाहूंगा कि जम्मू राजधानी और डिब्रूगढ़ राजधानी में एक थर्ड एसी का कोच अटैच किया गया है। अमृतसर शताब्दी और चंडीगढ़ शताब्दी में भी एक एक्स्ट्रा एसी चेयर कार का कोच अटैच किया गया है। और एक बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, जो मुख्यतः साबरमती, मुंबई, हावड़ा ऐसे स्टेशन के लिए, इसके अलावा पटना, दरभंगा, त्रिवेंद्रम, इन सभी स्टेशन के लिए स्पेशल ट्रेन भी अनाउंस की गई हैं और लोग उनमें बुकिंग भी करा रहे हैं। और आने वाले समय में और रेलवेज द्वारा भी ट्रेन चलाई जा रही हैं, तो वो भी मीट आउट करेंगी। कुल मिला के हमारा ये टारगेट है कि इस बढ़ी हुई डिमांड को बेहतर तरीके से मीट आउट कर सकें और यात्रियों को और बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें।